Hello, Divyanshi. Is it audible? Am I audible to you, sir? Yeah, it is audible. So, hi, Divyanshi. Hello. How are you? Hello, sir. I'm good. Before starting, I would like to tell you that you have achieved a great thing. So, great congratulations to your effort and to you and to your family. Thank you so much, sir. So, what do you feel right now? I'm feeling relieved, satisfied, happy. I felt proud seeing my parents' face when I got home. Before that, it was some disconnection. That was just a fact to me. Now that I'm home, I'm feeling extremely happy. So, this is your, since you have achieved 189th rank in 65th BPSC, okay, you are in the final list of the BPSC. So, what you were expecting before giving this examination, especially 65th BPSC? Overall, prelims, after prelims, I was quite dicey because last in my 64th attempt too, I also missed the cutoff by 2 marks. So I was hopeful, but I wasn't sure in the prelims. But I was happy to sail through the prelims. Then mains, I did write good papers. I was quite hopeful. I was confident, but at the same time, I was not really ready to speak up if I would get an interview call or not. So during the mains there, when I began my preparation, I was at very moderate level of answer writing as per the standards of BPSC. Then as you know, then I encountered your channel and it gave me a huge boost as per the standards, that the suggestions that you suggested, the incorporations that you told regarding the number of flowcharts that one answer of the exam deserved. So काफी help हुआ उससे, तो exam अच्छा गया था. Then interview also went fine. It was moderate to, it was above average, but it was not very good. You had been throughout in the journey for the mocks also. So I was hoping selection, but that time also I was a bit apprehensive. So it is how it has been. So I was hopeful, but I was quite apprehensive to speak up until I see the name in the list. So the journey had begun with fear. It got into confidence when I got into a sense of confidence when you started evaluating my answer sheets, and I got that standard कि हाँ ठीक है, इस पे इतने मार्क्स बन जाएंगे मेरे इतना लिख करके. So उसके बाद तो it has been quite smooth than it was when I started preparing for Bihar PCS mains. Okay. तो आपको ये कैसे पता लगा कि you have been selected in BPSC in 65th BPSC finalist? मैं सो रही थी दोपहर में और सडनली टेलीग्राम पे ही किसी ग्रुप पे मैसेज आया था, एक पीडीएफ फाइल, एंड उसके नीचे था, एंड बिकॉज ऐसे ही हो रहा था कि 7-8 बजे तक रिजल्ट आएगा, तो वो थोड़ा सा लग रहा था कि ओके 3 घंटा 4 घंटा 1-1 घंटा ऐसा हो रहा था. एंड आई वाज लाइक ओके. तो मैं बहुत नम थी स्टार्टिंग, मतलब 15-10 मिनट्स में नहीं प्रोसेस कर पा रही थी. ओके आ गया है. And those 3-4 seconds when I searched my name, I typed my roll number, तो वो जो आधा सेकेंड it processed, okay आएगा नाम नहीं आएगा नाम, तो 2 years got boiled. जैसे बिग बैंग थ्योरी की सिंगुलैरिटी नहीं होती है ना, सब कुछ वो उस 1 सेकेंड में आ गया था कि अच्छा नाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा. फिर ऐसा सा हो गया था, तो इट वाज गुड. बट तो टेलीग्राम के थ्रू पहले मुझे पता चला. उसके बाद व्हेन आई कॉल्ड वन ऑफ और 2 of my friends, and one of them suggested कि भाई ऑफिशियल भी देख लो, टेलीग्राम चैनल वाला क्या कर रही हो. Then I immediately rushed out to bbpsc.bis.nic.in कि हाँ नहीं मैं खुद से देखूंगी तब किसी को बोलूंगी. तो फिर then it was like okay, तो 30-35 मिनट तक I was quite flat. It was just कि बता दे इनको कि हाँ इंटरव्यू दिया था सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू दिया था सिलेक्शन हो गया. Then when my relatives started calling and people started telling me it has happened,
तो Okay. थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना शुरू हुआ कि ओके मीन्स कि हो गया है बिग कुछ। बिग इवेंट हैपेंड। हाँ तो ऐसा सा था। तो आपके इस रिजल्ट के बाद हु आर द फर्स्ट पर्सन whom you called up and आई told कॉल्ड that? माय फादर। Okay. आई How, कॉल्ड what माय was his फादर। feeling at that time? He was, I think, he would have been very happy, but my father always has been the kind of person who has always tried to keep me sane and balanced. Okay. So he was happy, but at the same time, he was constantly urging me to be humble, to stay grounded, and keep striving for more, and do not let this success get over your head. So And this was like a genuine yeah, father. Divyanshi, this is what you have inherited from your father, and your appearance, your reply is also calm, cool, and soothing also. So this is your Thank you, inheritance sir. from your father. So Thank you, sir. वो एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपको ये आपने ग्रेजुएशन किया बीएचयू से, राइट? बीएचयू से Yes, sir. केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर आपने फर्दर स्टडी किया, तो आपको सिविल सर्विसेज के बारे में आइडिया कहाँ से आया, या कैसे आपने सोचा कि आई हैव टू इंटर इनटू सिविल सर्विसेज? Civil services had been in my mind in a minor form in 11-12, but because of the fact I am the first in the generations of the family who is into it, तो एक बहुत ज्यादा डर था मेरे अंदर, और मुझे ये पता था कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल फील्ड है, और मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता था कि ये करना कैसे है, व्हाट। फिर ग्रेजुएशन तक आते आते थैंकफुली आई एम थैंकफुल टू माय इंस्टीट्यूशंस दैट आई अटेंडेड in my education. I am grateful to my school. I'm grateful to my alma mater, Banaras Hindu University. वहां पे थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर होती गई कि हाँ सिविल्स ट्राई करना है। थिंग्स इट वाज लाइक इट वर्कड इनटू टू प्रोसेसेस। मेरा साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन साइंसेस, नॉट एक्चुअली रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। एक चीज मुझे फिफ्थ सेमेस्टर तक क्लियर हो गई कि मैं इस जगह कितना भी लेबर पुट करूंगी, मेरे रिजल्ट्स यहाँ पे कल्मिनेट नहीं हो रहे हैं प्रॉपर्ली। सेकेंडली, मैं काफी को करिकुलर्स करती थी और एनएसएस वगैरह मैं करती थी, तो मैं सेकेंड थर्ड ईयर में एनएसएस में थी, नेशनल सर्विस स्कीम। तो वहां पे मेरा बहुत मन लगा। लाइक आई वाज, वो 7 डे के जो कैंप्स होते थे, आई वाज लाइक मुझसे और काम करवाओ, इतना कम क्यों करवा रहे हो। मेरे को बहुत अच्छा लगता था जाके सर्वेज लेना, लोगों से बातें करना, जिस भी गांव वगैरह में जाते थे हम लोग। तो वहां पे मुझे लगता था कि वर्किंग ऑन ग्राउंड is something that makes me happy to a job which is very much dynamic in nature and public facing. तो वहां पे एक चीज था, then I had been in co-curricular since very beginning, so I realized कि humanities in general and groundwork are something that attract me. I'd never feel the burden. वहां पे मेरा effortless performance होता है। तो through this then the plan started कि नहीं sciences तो नहीं करना है, masters sciences में नहीं pursue करना है। फिर 5th-6th सेमेस्टर तक ये चीज क्लियर हो गई थी कि इधर नहीं जाना है। देन आई थॉट कि नहीं करके देखते। तो वो काफी एंट्री तो काफी अंडर कॉन्फिडेंस में हुई थी, बिकॉज देयर वर टू थिंग्स दैट हैपेंड। आई डिड नॉट चूज दिल्ली एंड आई डिड नॉट चूज एनी ऑनलाइन कोचिंग एज वेल। सो वो कंप्लीटली डे 1 से सेल्फ स्टडी चला है, एंड वही रिसर्च बेस्ड गाइडेंस की प्रोफेसर से जाकर के एक आध बार बात कर रहे हैं रिक्वेस्ट करके, या फिर गूगल रिसर्चेस कर रहे हैं, वेबसाइट्स फिल्टर करते रह रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है प्लेलिस्ट खोज रहे हैं, उसको फिल्टर कर रहे हैं कि क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। द गुड एंड द बैड थिंग अबाउट इंटरनेट इज इट गिव्स यू प्लेथोरा ऑफ रिसोर्सेज। you it is your wisdom to decide what is relevant and what is irrelevant. तो वो एक वैसा जर्नी रहा। फिर धीरे धीरे करते करते थोड़ा टाइम लगा, पर चीजें समझ आने लगी धीरे धीरे। 2018 I started कि let me get into masters. Then I simultaneously got through that, and given the background I have and unpredictability of the nature of civil services that I cited, so I also needed a cushion as per conscious decision making. So I secured my net JRF line in case if I am chalked out from the interview, I have something else to pursue. And so this is how it has been started with underconfidence and culminated with success. I'm very glad and I'm very thankful to Almighty for
having me this, for letting me have this. तो ये बताइए कि अभी बीपीएससी की तैयारी में या सिविल सर्विस की तैयारी में, खास करके अभी जब 65 का रिजल्ट आया है तो अब बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एंट्री मारेंगे इस कंपटीशन एग्जामिनेशन में। तो आपका जो प्रिपरेशन ड्यूरेशन था या कोई प्रिपरेशन शेड्यूल था या एक टेन्योर है कि 1 साल 2 साल, बहुत लोगों का कहना होता है 4 साल तक लगेंगे तब होगा, किसी का कहना होता है 2 साल तक होगा, या एक शेड्यूल होता है, तो क्या था आपका स्ट्रेटजी? मैं कुछ ऐसा डेडलाइन ले करके अपने अंदर घुसी नहीं थी इसमें। आई स्टार्टेड, माय ओनली थिंग वाज इट शुड नेवर बी अ बैड स्कोर। मेरा स्कोर अगर मैं फेल भी हो रही हूँ वो कभी भी डीमोटिवेटिंग या ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे ये लगे कि मेरी पढ़ाई रिजल्ट्स नहीं दे रही है। मे बी मैं प्रीलिम्स फेल कर जाऊं, पर मुझे पता होना चाहिए मैं 50 नंबर पे फेल नहीं करनी चाहिए। अगर कट ऑफ 90 है तो मैं 85 पे फेल करूं, 84 पे फेल करूं। इट शुड बी जस्टिफाइड। मेरे एफर्ट्स में द थिंग इज मुझे खुद को धोखा नहीं फील होना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ। एंड द थिंग इज दिस cognizance that one has to have for himself or herself कि the soul would always know where your efforts are leading. So I never gave myself a deadline कितने में कर लेना है, because that unintentionally creates a negative pressure. There is one thing that you should always aim for, that is improvement within a desirable pace. एक वो चीज होती नहीं है स्लो है तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज राइट, स्लो है कोई दिक्कत नहीं है, पर वो डिजायरेबली स्लो होना चाहिए, वो आपका आइडियल स्लो नहीं होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई हाँ, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, बट इट शुड नॉट बी स्लीपी। या so that is what I believed, and trust me, if it is clubbed with discipline and consistency and regular hours of study. Regular hour doesn't mean 12 hours of study. That means enough output for each day. आप 5 दिन पढ़ो, 2 दिन रिवाइज करो, फिर 5 दिन पढ़ो, 2 दिन रिवाइज करो। आपका जो भी बेंचमार्क है, आपका 10 दिन का बेंचमार्क है, आप सैचुरेट हो जाते हो, घूम लो, मूवी देख लो, जो करना है कर लो। डू नॉट, ये बहुत गलत चीज है, पता नहीं ऐसा क्यों है कि आपको 300 दिन पढ़ना है। नहीं, आपको 20-25 दिन बहुत अच्छे से पढ़ना है। बस गिव योर ब्रेन enough fuel, enough energy that it needs. It needs all of things. It needs academics. It needs break as well to rejuvenate. So ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, एक चीज मैं बहुत strongly believe करती हूँ, आपका syllabus complete होना चाहिए। If आप competitive services में जा रहे हो, आप ये नहीं सोच सकते हो कि आप syllabus नहीं complete करोगे। The first step to get into it is complete the syllabus, revise the syllabus. मैं बिहार pieces पे ही अभी comment करूंगी because that is what I have in hand, so therefore I am entitled to speak only for that. Ki there, for example, if I talk about your channel, there are dedicated playlists for history. They're dedicated for I would specifically want to cite especially the history playlist that I have personally seen thrice, 4 times. I still remember, sir, it was my mains and it was quite busy. We know kitne short time pe hamara 66 ka bhi mains aaya tha, this the next that I wrote. I just put the playlist on speaker और कुछ मेरा extra काम होता रहता था because time नहीं, you have to steal time and you have to cover it also. तो आप कहते किस तरीके से कोर्स कवर कर पा रहे हो? Eventually you have to, एक dedicated syllabus है, syllabus रट करके उसको complete करके आप complete किए रहो, वो आपके tip of the tongue पे होना चाहिए। उसके बाद आप उस पे गार्निशेस ऐड करते हो, जीएस वगैरह में डेटा हो गया, द वे यू शुड इनकॉर्पोरेट चार्ट्स और थिंग्स लाइक दैट। तो बेसिक सिलेबस इज योर बेयर मिनिमल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कितनी भी मेहनत करो, बट अगर आप सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, प्लीज एक्नॉलेज देयर इज सम प्रॉब्लम एंड यू नीड टू कॉन्शियसली मेंड दिस। सो इफ योर सिलेबस इज ओवर, आई थिंक 1 year or 2 year is good enough to at least sail through और give you hope कि नहीं ये हो जाएगा। ऐसा out of the box चीज नहीं है जो आप hopeful ना रहो या फिर confidence lose कर दो। So that syllabus is the key and revision is the key and staying honest to yourself. Each day should be something. ऐसा खाली नहीं चला जाना चाहिए। एक आपका bare minimal होना चाहिए, न्यूज़पेपर हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, कुछ भी हो गया, वो आपका एज अ डेडिकेटेड कैंडिडेट बेयर मिनिमल तो रोज होना है। तो दिव्यांशी, आपके इस स्पीच के दरमियान मैंने कुछ वर्ड्स या की वर्ड्स आइडेंटिफाई किया जो कि आने वाले सारे कैंडिडेट के लिए बेहतर होगा
जैसे आपके अनुसार सेल्फ स्टडी, आपके अनुसार ऑनेस्ट और कंसिस्टेंट स्टडी, आपके अनुसार टाइम मैनेजमेंट, आपके अनुसार सिलेबस कंप्लीशन, ये कुछ ऐसे हैं and जो कि and इट शुड बी revision. इनहेरेंट in every Yes, sir. each and every aspirant. Only then they can think about success. Otherwise सक्सेस मुझे नहीं लगता है। अब मैं भी आपकी इस पॉइंट से एग्री करता हूँ कि अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है, डिसिप्लिन स्टडी नहीं है, कंसिस्टेंट स्टडी नहीं है, ऑनेस्ट स्टडी नहीं है, जैसा कि आपने बोला ना कि 90 अगर कट ऑफ है और 85 भी आ रहा है, तो मुझे ये फील होना चाहिए कि यस आई एम डिजर्विंग 85 नाउ एटलीस्ट। ये नहीं कि 90 है और हम 50 पे भी जा रहे हैं और फिर भी आई एम स्पीकिंग यार मैंने तो अच्छा स्कोर किया था, क्यों नहीं हुआ मेरा पीटी, जरूर बीपीएससी में ऐसा हो रहा है तो सिविल सर्विस में ऐसा हो रहा है। दिस नॉनसेंस, these are excuses for the students who are not ready to crack it. वेल आपके इस पॉइंट से मुझे क्लैरिटी आया, बाकी स्टूडेंट्स को काफी हेल्प मिलेगा। अब मैं आपके सामने जो क्वेश्चन पुट अप करने वाला हूँ वो ये चाहता हूँ कि आप ये बताएं सारे कैंडिडेट्स के लिए कि बीपीएससी को अगर कोई क्रैक करना चाहता है, ठीक है, तो क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जरूरी है, या उसमें कोई भी एक गाइडेंस या मेंटर का कितना हेल्प मिल पाता है? Guidance is very important. गाइडेंस का सोर्स कोचिंग होना जरूरी नहीं है. दिस इज हाउ आई सी इट. गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो कंप्लीटली पर्सनल भी नहीं हो सकता बिकॉज आपको उससे पता नहीं चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो. So you have to have some hand on yourself, but ये एक बहुत बड़ा myth है that you have to spend a lot in joining coachings and all. BPSC को लेकर के there are dedicated playlist. मैंने पहले भी बोला आप उससे पढ़ो. पीटी मेंस का इनफ मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ बिहार पीसेस आराम से मिलेगा. मैंने आप पहले भी कोट किया कि आई हैव पर्सनली रेफर्ड योर वीडियोस इन लेंथ, सो दैट हेल्प्स. एंड एक चीज मैं बोलूंगी, करंट के लिए मैं बोल सकती हूँ कि करंट इट हैज टू बी योर एक हद तक योर ओन प्रोग्रेस ऑफ माइंड. आप न्यूज़पेपर रीडिंग अगर डेली नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आप मटेरियल पढ़ के पीटी तो निकाल लें. हो सकता है आप और मटेरियल पढ़ के मेंस के आप क्वेश्चंस इत्तेफाक से प्रेडिक्ट कर ले जाएं, बट आपका माइंड ग्रो नहीं करेगा. तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू रीड ऑन योर ओन एंड रीडिंग हैज इट्स ओन पर्पस. नो वन कैन हेल्प यू क्रैम द मटेरियल इफ यू आर नॉट वेल रेड. जो भी गाइडेंस भी है वो भी 10 to 20 to maximum 30% of it है. No one can feed anything in your brain. So you have to be a reader first in order to become a learner. So that is the thing. But ये बिल्कुल भी मैं personally अपने लिए बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल भी generalize नहीं कर रही हूँ. This is my personal opinion, subjective opinion. Coaching is not necessary. Paying hefty amount is not necessary. Sticking to the syllabus and referring the relevant material is the key, and revising and re-revising it, and following the previous year question papers if it is prelims, and previous year question papers if it is mains. So analyzing it and practicing as much as you can. Okay. मेरा एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा था. अक्सर आप तो जानते हैं कि अपना वी डिजर्व टेलीग्राम चैनल के थ्रू मैं बीपीएससी के लिए डिवोटेड रहता हूँ. लोगों को जितना हो सकता है मैं हेल्प कर पाता हूँ तो ठीक है, करने की कोशिश करता हूँ. लेकिन मैंने अपने टीचिंग के दरमियान लास्ट 2 इयर्स में मैं अपने चैनल के थ्रू या अन अकेडमी के थ्रू जहां से भी मैंने टीच किया, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि लोग ज्यादातर पीटी के बारे में सोचते हैं, मेंस के बारे में नहीं. मैं अक्सर सजेस्ट भी करता हूं कि अगर आप एग्जाम देते हो तो मेंस का तैयारी करो, ना कि पीटी का. पीटी के लिए लास्ट 1-2 मंथ्स या मैक्सिमम 3 मंथ्स अगर कहें तो दैट इज सफिशिएंट. लेकिन लोग मेंस की तैयारी करते हैं, पीटी की तैयारी करते हैं और उसी में सिमट कर रह जाते. तो ऐसे में उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो पीटी करते रहते हैं, मेंस पे ध्यान नहीं देते, उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप? मैं उनको ये मैसेज कन्वे करना चाहूंगी कि पीटी निकालना इज अ पार्ट ऑफ अचीवमेंट, दैट इज नॉट द इवेंचुअल अचीवमेंट. तो शायद आप पीटी का कट ऑफ ब्रीच कर भी ले, पर अब एक आपके लिए एक नया पेन इंतजार कर रहा होगा अगर आपने मेंस का कट ऑफ नहीं ब्रीच किया. एंड वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस थिंग
अगर मेंस अच्छे, ऑब्वियसली उसका भी एक रीजन है, हम अगर रूट तक पहुंचे तो पीटी का सिलेबस, बिहार पीसीएस की मैं बात कर रही हूँ, मेंस के सिलेबस कहीं वास्ट है। सो ऑब्वियसली करंट अफेयर्स चीजें ज्यादा आ रही हैं, एंड इफ यू सी एटलीस्ट जीएस 1 में हिस्ट्री वगैरह का सेक्शन स्लाइटली प्रेडिक्टेबल है बिहार पीसीएस के लिए। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि बिहार पीसीएस मेंस तो ये है, ये पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। माय सजेशन, हम्बल रिक्वेस्ट टू देम इज, जो चीज आपके लिए प्रेडिक्टेबल है वो पूरी जनता के लिए प्रेडिक्टेबल है। तो यू हैव टू थिंक आप क्या अलग लिख रहे हो। वो जितने 6-7 हजार लोग मेंस ले रहे हैं वो सबके लिए प्रेडिक्टेबल है। तो एक आप बिल्कुल मेंस का, इसीलिए मैं बार बार सिलेबस पे एड्रेस कर रही हूँ कि पीटी मेंस दोनों का सिलेबस साइमल्टेनियसली चलता रहे। आपका कोर्स खत्म होना चाहिए। पीटी का रिविजन आप डेडिकेट कर दो, लास्ट 60 to 70 डेज आप कुछ मत करो, सिर्फ पीटी करो। बट थ्रू आउट द ईयर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहो, कंपाइलेशंस पढ़ते रहो, जो भी आपका सोर्स हो सकता है। वो करंट अफेयर्स के सोर्सेस सबके लिए वेरी करते हैं, और मैं किसी को पर्सनली कोई एक सिंगल सोर्स नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैंने खुद भी कभी एक सिंगल सोर्स वो नहीं किया। आई हैव बीन अ रेगुलर न्यूज़पेपर रीडर विदाउट बैकलॉग, तो दैट हैज हेल्प्ड मी पर्सनली क्वाइट वेल, एंड दैट हैज हेल्प्ड मी इन इंटरव्यू टू। सो इवेंचुअली मैं यही बोलना चाहूंगी कि पीटी निकलना कोई अचीवमेंट नहीं है। आपका मेंस नहीं तैयार होगा तो इवेंचुअली यू विल नॉट मेक इनटू द लिस्ट। और ये चीज थोड़ा समझनी चाहिए कि अगर मेंस के आपके मार्क्स अच्छे हुए तो आपको इंटरव्यू का स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा टू मेक इट टू द लिस्ट। हो सकता है आपकी रैंक नीचे आए, बिल्कुल हो सकता है, बट एटलीस्ट यू विल गेट सम प्लेस इन दैट पीडीएफ व्हिच इज अ ह्यूज मोरल बूस्टर। So this has to be kept in mind. आप as a candidate पीटी की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप as a candidate पीडीएफ के लिए तैयारी कर रहे हो। So this has to be kept in mind. और सबसे बड़ा रियलाइजेशन इसमें बच्चों को ये होना चाहिए कि ये तो कोविड वगैरह हो गया तो मेंस इतना आगे खिसकता चला गया। अगर मेंस तैयार नहीं है तो 3 महीने में आप नहीं कर सकते हो, 4-5 महीने में अगर आइडियल टाइम जो भी है आप नहीं कर पाओगे, आप फॉल्टर कर जाओगे। और कैंडिडेट्स बढ़िया आ रहे हैं। इवेंचुअली इट्स नॉट दैट हाउ गुड यू राइट, it's all about are you writing better than others. So yes. This is what I want to say. Okay. और लास्ट में मैं एक और क्वेश्चन पुट अप करना चाहता हूं जो कि बहुत ही मुझे लगता है कि रेलिवेंट होता है एक कैंडिडेट के लिए। क्वेश्चन हमारा जो है वो बेसिकली उन परिवार से बिलोंग करने वालों के लिए है जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उनके लिए आपको क्या मैसेज होगा? क्योंकि वीकर सेक्शन वाले के पास एक प्रॉब्लम होता है कि हम शहर जाकर नहीं पढ़ सकते हैं, हम कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, हम ट्यूशन फी या जो भी टीचर का फी होता है वो पे नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें किस तरह का स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल भी हों और उनके इकोनॉमिकल कंडीशन के अनुसार वो एक्सपेंडिचर भी इनकर ना करना पड़े? I followed, I quoted in the beginning itself. Sorry to interrupt you. Since आपने कोचिंग नहीं किया कहीं पे, आपका सेल्फ स्टडी रहा है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन रहा है with regard to your study, and because of that I put up this question before you. और एक चीज और मैं आपके बारे में आपके मॉक इंटरव्यू के दरमियान came to know कि आप सोशल सर्विस में भी काफी इन्वॉल्व रहे हैं। जैसा कि अभी भी आपने कुछ देर पहले बोला था कि एनएसएस में या एजुकेशन सर्विस में, तो आप जहां भी रहे हैं, जिस भी माहौल में रहे हैं, चाहे वो बीएचयू हो या आपका अयोध्या नगरी हो, कहीं ना कहीं आप एजुकेशन से रिलेटेड रहे हैं, करेक्ट? तो ऐसे में आप सोशल सर्विस में रहे हैं तो आपका एक प्रॉपर एटीट्यूड रहा है, एक इंक्लाइनेशन रहा है। इसीलिए मैं ये पुटअप किया हूँ कि उन सारे लोगों के लिए एक नया पाथ मिल सके आपके थ्रू। ओके, पहली चीज तो मैं ये बोलूंगी कि अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि कोचिंग नहीं गए तो कहीं भी आप पीछे हैं। आप थोड़ा पीछे हो सकते हैं पर वो मेंड किया जा सकता है। एक ये बहुत चीज होती है ना कि आप किसी दिल्ली के कोचिंग वाले से बात कर रहे हैं तो आपने बोला अच्छा ये तो XYZ में पढ़ते हैं, हम तो खुद से करें। वहां पे ये मत सोचिए कि आप पीछे हैं। इट इज एज इक्वल, आप भी उसी एग्जाम की तैयारी करो, से विद प्राइड आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। सो बेसिकली एज अ कैंडिडेट यू बोथ आर इक्वल. Let the commission decide. One of my very close friends once told me when I was discussing कि नहीं हुआ तो क्या होगा, तो I was just told let the commission decide it, you don't decide for yourself. So this is the thing. And दूसरी चीज, quality content is available for free
over YouTube. I personally, for answer writing, I had only one source, that was you. My copies were only evaluated by you. Whatever 30-40 answers I wrote through that process, whatever things I got, I have just given one mock interview. I have not enrolled in any coaching so far. One single mock interview that I have given to you. That was all in the process. Baki, one thing that you told, self exploration, वो आपकी personality बहुत build करता है. Point number 1, ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप बिल्कुल भी पीछे हैं. आप अपना एनालिसिस खुद करते रहिए, टेस्ट खुद लगाते रहिए, आप में इम्प्रूवमेंट आएगा. महीने दर महीने इम्प्रूवमेंट आएगा, निश्चित आएगा अगर आप कायदे से पढ़ रहे हैं. दूसरी चीज, अगर आप ऐसा कोई फ्री सोर्स या मेंटोर रीच आउट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल थ्रू योर चैनल, और आप उतने समय के लिए उन पे समर्पित कर दो. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, समर्पित कर दो का मेरा मतलब ये है, जब आपने ये चीज बोला कि कोचिंग जरूरी है, तो मैंने ये बोला था कि पेड कोचिंग जरूरी नहीं है, पर गाइडेंस जरूरी है. वो दोस्त का हो सकता है, वो किसी टीचर का हो सकता है. तो जब आप जिससे गाइडेंस लेने जा रहे हो, उसको समर्पित कर दीजिए. आप किसी एक भावना से जाइए. एक खाली बर्तन के जैसा नहीं होता है ना, कि किसी विश्वास से अगर आप किसी से पूछने जा रहे हैं और अगर वो कुछ बोल रहा है और आपको सही लग रहा है, तो वहां पे आप उस चीज को तुरंत इनकॉर्पोरेट करिए. अपनी गलतियों को मानिए और इमीडिएटली उसमें सुधार करने की कोशिश करिए. शायद अगर आपका मेंटोर, इफ यू रिमेम्बर सर, आप मेरे को अगर पॉइंट आउट करते थे कि यहाँ पे चार्ट नहीं बना है या फिर कुछ दिक्कत है, आई tried to write the answer then and there that day itself. उससे क्या होता है ना, आपको याद रहता है. आप अलसाओ मत वहां पर. जहां से भी आपको इम्प्रूवमेंट का थोड़ा सा भी मौका मिल रहा है, आप उसको तुरंत कर लीजिए. बिकॉज आप की जिम्मेदारी कोई और लेके नहीं बैठा है. आप अच्छा करो या बुरा करो, दिस इज फॉर द पीपल दैट यू हैव टोल्ड, दैट यू हैव आस्क्ड अबाउट, पीपल who are not financially that much well to do, that they spend thousands for coaching. So they have to take an iota of responsibility more for their own self. And अगर उनको mentor मिल रहा है, तो उतनी देर के लिए वो एक समर्पण के भावना से जो भी इनको सारे उनको तुरंत कल्मिनेट करें कि कैसे उसमें इनकॉर्पोरेट करके आगे बढ़ रहा है. वहीं पे तुरंत करते हैं. वो कभी नहीं भूलता. वो आपको एग्जाम हॉल में याद रहेगा, वो आगे भी याद रहेगा. और दूसरी चीज है जो मैंने पहले बोला, आपको कोई भी कोचिंग मटेरियल एक बार की चीजें प्रिपेयर करा सकता है, पर 30-40% से ज्यादा नहीं करा सकता. जो कोचिंग कर भी रहा है वो भी खुद ही पढ़ रहा है. वो जीएस वगैरह खुद तैयार कर रहा है. एक स्टैटिक भले वो पढ़ दिया जाए, करंट अफेयर्स वो खुद तैयार कर रहा है, चीजें वो कंपाइलेशन खुद कर रहा है, नोट्स वो खुद बना रहा है. तो कोचिंग eventually it is self study for everyone, only the percentage varies. No one can fill anything in your brain. The mentor can be your guiding light, but he cannot walk your path. So the step 1 is to shed the disbelief कि हमसे नहीं होगा, and consistency, perseverance and revision as much as it is possible. Because कोर्स इतना ज्यादा है कि आदमी वहां पेपर देख करके डर जाता है कि हम पढ़े थे पर याद नहीं आ रहा है, शायद हम कोचिंग कर लिए होते तो हमें याद रहता. नहीं, आपने रिवाइज नहीं किया इसलिए नहीं याद आ रहा है आपको. दैट्स इट. अभी रिवीजन की बात है, जहाँ याद रखने की बात है, इसमें कोई ऐसा चीज जो आप बता सकें. बहुत लोगों को याद करने का बहुत प्रॉब्लम रहता है स्टूडेंट्स को, कि सर याद नहीं होता है. आपके तरफ से कोई पॉइंट? रिविजन का मॉक्स ज्यादा लगाना एक तरीका है कि रिविजन होता रहे. दूसरी चीज जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आप कुछ भी अगर कंटेंट लाए ना, तो ट्राई टू राइट और मेक नोट्स आउट ऑफ इट बाय योर ओन सेल्फ. उससे क्या होता है, योर न्यूरॉन्स एंड योर हैंड मैकेनिकली एक बार उस पर वर्क कर रहा है, तो वो याद रहेगा. सो ट्राई टू train your body and neuron repeatedly how to fix it into your brain. So everything, I think preparation should be sometimes seen in terms of how your body is working. What is the role of habit or power of routine or habit building in your life? तो इन सारी चीजों का लॉन्ग रन में बहुत फेवर मिल जाता है. एंड इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. ये सेमेस्टर्स नहीं है कि 1.5 महीना जग के कर लेंगे हो जाएगा, नहीं होगा. इट्स अ ईयर लॉन्ग थिंग. तो रिविजन का यही चीज है, रीडिंग इट मल्टीपल टाइम्स. एंड एक बहुत बड़ी चीज मैं बोलूंगी जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. इसका कहने का मतलब ये है, there are certain sections जहां से कोर्स क्वेश्चन ज्यादा पुट होते हैं, तो इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स आप लगाइए. आप हिस्ट्री नहीं छोड़ सकते, 20 से 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है. लेकिन अगर आप
अपना 4-5 दिन पर्सनालिटीज रटने में लगा रहे हैं, तो आप एक तो पहली चीज आप उसको कितना भी रट लेंगे, कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, क्या पूछा जाएगा, तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ये ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज आप ये पता करिए कि कुछ चीजें तो आपको कभी नहीं याद हो सकती हैं, तो इट्स बेटर जो आपके वीक एरियाज हैं उन पे आप ज्यादा एनर्जी मत लगाइए, क्योंकि अगर वो आपने ट्राई कर लिया है और वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि वीक एरियाज आपसे छूट भी रहे हैं तो आपका कट ऑफ रीच हो जाए। सो आपको 150 के 150 सवाल आने की जरूरत नहीं है, बट आपको 110 115 आने पड़ते हैं। तो हम राइजिंग कट ऑफ देख रहे हैं बिहार पीसीएस का, तो 115 पे थोड़ा सा सेफ साइड हो गया। तो आप अपना वो, हर किसी का कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग एरिया होगा, कुछ ना कुछ वीक एरिया होगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा वो आदमी खुद ही, तभी उसके हिसाब से काम हो जाएगा। वीक एरियाज पे बहुत ज्यादा मेहनत लगाने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होता है ना, वो क्वेश्चंस जब सामने आते हैं ना, तो पेपर के टाइम उस दरमियान कॉन्फिडेंस हिल जाता है, अरे पढ़े थे याद नहीं है। तो ये सारी चीजें ध्यान देनी रहती हैं कि प्रीवियस ईयर नोट्स बाय योर ओन सेल्फ, एंड फॉर पीटी द जनरल टिप इज, एक जो मैंने पर्सनली अभी ये लेटेस्ट डिस्कवर किया है अपने लिए, कि जो किताब खोल के हम बार बार पढ़ते रहते हैं वो हम उसको बार बार पढ़ रहे होते हैं, हमारा ब्रेन उसको रिकॉल नहीं कर रहा है। तो आप जब भी रिवीजन करो, आप एक टॉपिक सोच लो और उसके बारे में बस कुछ अपने सामने रखे बिना बस याद करने की कोशिश करो। तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या पॉइंट्स नहीं याद आ रहे हैं। तब आपको पता चलेगा ओके हम शायद पूना पैक्ट का ईयर भूल जाते हैं। आप पूना पैक्ट देख करके पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है ये मैंने पढ़ लिया, तो वो एक फॉल्स बिलीफ हो जाता है कि हमने तो रिवाइज कर लिया पूना पैक्ट, पर आपसे क्वेश्चन आएगा हमने आपको 31 32 33 दे दिया, शायद आपको नहीं याद आए कि 32 था। सो दिस इज द वे कि रिविजन आदमी कर रहा है, पर शायद तरीका थोड़ा सा एक इम्प्रोवाइज हो जाए तो रिजल्ट्स बेटर आने लग जाए। तो यही चीज है। तो व्हेन यू आर रिवाइजिंग, ट्राई नॉट टू रीड द टेक्स्ट, क्लोज योर आईज और जस्ट चलते फिरते मॉर्निंग वॉक पे रिवाइज कर, मन में रिवाइज कर लिया, अच्छा कल ये पढ़ा था, ये पॉइंट्स थे, तो आदमी इट्स लाइक रिपीटिंग टू योर न्यूरॉन्स कि ये चीजें थी। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब भी है इस रिगार्डिंग, रीड वंस, राइट ट्वाइस, थिंक थ्राइस। तो जहां तक आपका ऑब्जर्वेशन है तो थिंकिंग इज द मेजर थिंग। वन लास्ट क्वेश्चन, अभी तक तो हम लोगों ने जो बात किया वो पीटी मेंस और ओवरऑल की बात है, बट हमारे बहुत सारे अभी भी कैंडिडेट हैं जो 66 के बाद 67 की भी तैयारी कर रहे हैं और 66 का मेंस भी लिखेंगे, ऑलरेडी मेंस लिख चुके हैं, सॉरी इंटरव्यू भी देंगे। उन सारे कैंडिडेट, कुछ लोगों को मैंने आपके बारे में ही बताया था तो उन्हें भी बताया, तो वो ये जानना चाह रहे थे कि इंटरव्यू के दरमियान मैडम से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था या किस तरह का प्रिपरेशन करके वहां जाना चाहिए, क्या टेम्परामेंट होना चाहिए अपना, उसके बारे में अपना पॉइंट भी। ओके, एक जनरल टिप में बोलूंगी कि एक बैलेंस्ड ओपिनियन, ये मुझे आपने भी सजेस्ट किया था। इन जनरल मैं भी जब अपनी सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी कर रही थी तो मुझे डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस और एक चीजें देखी कि एक बैलेंस्ड ओपिनियन होना चाहिए। आप कभी भी किसी भी पॉइंट पे एक्सट्रीम्स पे मत जाइए, ना बहुत ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक होइए, ना ज्यादा बहुत ज्यादा ओवर क्रिटिकल होइए, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है व्हाट एवर इट इज, उस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जैसे मेरा केमिस्ट्री ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था, उन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए, एंड स्टार्टिंग में शायद कोई कैंडिडेट होता, अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होता, थैंकफुली आई समहाउ सस्टेन दैट, तो वो हो सकता है कि कॉन्फिडेंस वहां पे लूज कर दे, बिकॉज आपके स्टार्टिंग के ये 4-5 क्वेश्चन आई डोंट नो में जाते हैं, तो आपको लगता है योर डेक ऑफ कार्ड्स इज फॉलिंग नाउ। तो एक तो पहली चीज ये, you ought to have a balanced opinion। दूसरी चीज, करंट अफेयर्स की आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज जो भी न्यूज में चल रहा होगा वो आपसे पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल माई इंटरव्यू जिस टाइम था, उस टाइम असम मिजोरम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा, हिस्ट्री के बारे में पूछा, फैक्ट्स के बारे में पूछा, तो प्लीज रीड द न्यूज़पेपर्स। द significance of newspapers is this balanced approach। your graduation subject has to be quite good, वहां पे आपसे फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस निकल सकते हैं। your optional has to be quite good, वहां पर आपसे पूछ लेंगे जो भी आपका ऑप्शनल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन निकलेगा ही, निश्चित है आपके ऑप्शनल और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से क्वेश्चन निकलेगा। उसके बाद वो आपसे जनरल अप्रोच रिलेटेड कुछ चीजें जो स्कीम्स है न्यूज में, आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहाँ है। एक जनरल टिप में जो मैं बोलूंगी, आप जहां से बिलोंग करते हैं, आपने जहां पे रह के पढ़ाई की है, वहां से रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए। वहां की पर्सनालिटीज 3-4 आप नाम याद रखे रहिए, वहां पे ज्योग्राफी कैसी है, वहां का सोशियो कल्चरल या डेमोग्राफी कैसा है। तो इसके लिए मैं बोलती हूँ, एक अवेयर, एज एन अवेयर सिटीजन, एज एन अवेयर कैंडिडेट, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए।
और इसी को आपको इंटरव्यू से पहले ऑगमेंट कर लेना है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट की आप कैसे बोलेंगे और उसको कैसे फॉर्म करके प्रेजेंट करेंगे. सो दैट इज इट. ओके ओके. तो बहुत सारे लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे ये सजेशन और उन्हें अच्छा भी लगेगा. और मैं आपको अगेन लास्टली मैं यही बोलना चाहूंगा कि यू हैव अचीव्ड ग्रेट थिंग एंड आई एम होपिंग ऑल्सो कि आपका जो 66th मेंस गया है उसमें भी आप अच्छा रिजल्ट और इस बार और रैंक इम्प्रूव करके लाएंगे. रैंक 10 अप टू 10 तो आना ही चाहिए आपका. एक्सपेक्टिंग इन फ्यूचर ऑल्सो. सो गुड लक. एंड वन मोर थिंग कि फाइनल टच के तौर पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपके तरफ से सारे लोगों के बीच में कि आपका मैसेज है लोगों के लिए कि ये जितने भी लोग हैं उन्हें अपने ऑनेस्टी के साथ में सेल्फ स्टडी करना चाहिए. कोचिंग हो या कहीं भी हो, कहीं भी जाए, बट ही हैज और I'm दे not हैव टू against the स्टडी idea सेल्फ. of coaching, but I'm not against the idea of coaching. या It's या just that this दिस belief is wrong. कि या coaching is दिस necessary. इज व्हाट आई एम कन्वेइंग मैसेज कि कहीं से भी आप स्टडी कीजिए, एक प्रॉपर गाइडेंस, एक मेंटोर की जरूरत होती है. प्रॉपर गाइड कोचिंग भी एक गाइडेंस के तौर पे ही होता है, मेंटोर की तरफ ही होता है. तो ऐसे में उन सबको ऑनेस्टली सेल्फ स्टडी करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट के साथ, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट और परसिवरेंस के साथ तैयारी करनी चाहिए. और उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कहाँ लैंड कर रहे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि कैसे वो अपने इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूस करते रहें, कैसे वो अपना अचीवमेंट आगे हर रोज, हर आवर, हर मिनट आगे बढ़ाते रहें. राइट. तो फाइनल मैसेज आपके तरफ से मैं और एक चीज मैंने आपको देखा कि आपने स्टडी के दरमियान ग्रेजुएशन भी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, सब्जेक्ट भी किया, सोशल सर्विसेज भी किया एंड आपकी जो प्रिपरेशन था वो साइमल्टेनियसली साथ में भी चलता रहा. तो दिस इज ग्रेट थिंग फॉर यू एंड आई थिंक एंड इनफैक्ट आई होप कि आप अपने आने वाले करियर में भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए दे पाएंगे. आप एक लैंडमार्क बन सके लोगों के लिए, लोग आपको फॉलो करें, एक एग्जाम्पल के तौर पे जाने और अपने माता पिता के लिए, बीएचयू के लिए और सारे कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बने, आइडियल पर्सन बने. सो Thank you, दिव्यांशी, sir. वेरी वेरी गुड लक एंड अगेन कांग्रेचुलेशन फॉर योर ग्रेट सक्सेस. Thank एनीथिंग you, sir. फ्रॉम योर साइड? No, sir. I'm just obliged for your help towards me. You have been a great help in my journey. Your channel and your videos and the improvements that you have suggested in my answers, so they had helped a lot. And that's it. So whatever self exploration it is, so there is always a cherry that has to be added. So that was objective from your side and your channel. So thank you, Divyanshi, and good luck for your future, and we'll see you again. Okay.